السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے 17 دسمبر 2020. جو سوالات اثر تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے. اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ گیا ہے تو ذاتی طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں پرنٹنگ پریس کا کام کرتا ہوں. ہم کو کیلنڈر وغیرہ بنانے میں کبھی کبھی غیر لوگ جو ان کو اپنا خدا مانتے ہیں ان کی تصویریں چھاپنی ہوتی ہیں، تو کیا ایسا کیلنڈر میں چھاپ سکتا ہوں؟ ایسا کیلنڈر نہیں چھاپنا چاہیے. کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ حیض کی حالت میں گاؤں وغیرہ میں جو ہے وہ کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ پیڈ نہیں ملتا ہے، تو اس کو استعمال کرنے کے بعد دھو کر کے اس کو پھینکنا چاہیے یا اسی گندگی کی حالت میں پھینکا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی ہارڈ فاسٹ شریعت نے نہیں دیا ہے. ایسی جگہ پھینکنا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے، تو اس کو جس حالت پہ چاہے پھینک سکتے ہیں. یقینی بات ہے ہر بار یہ کہا جائے دھل کر پھینکنا تو ایک بہت بڑا کام ہے. بہرحال شریعت کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے. نظافت کی بات ہے، اور آپ اپنے علاقے میں دیکھیں جہاں رہتی ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے، گندگی سے لوگوں کو بچانا چاہیے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب بچی کی پیدائش پہ یہاں چھٹی کرتے ہیں. میں نے گھر والوں سے کہا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اچھا چھٹی کے نام پہ نہیں کریں گے لیکن پھر دعوت کر لیں گے. سب سے پہلی بات یہ جانیں، دو چیزیں ہیں. کسی بھی کام کے لیے وقت کا متعین کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس کو دین جانا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس کام کو لازم سمجھا جائے کہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ کسی بھی نام سے کریں وہ بات وہی ہے. کان گھما کر پکڑنے سے ہی نہیں کہا جائے گا کان نہیں پکڑا گیا، کان پکڑا گیا. لہذا یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور اس قسم کی رسموں سے مسلمانوں کو بچانا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے. پچھلے سوال میں بھی بات آئی تھی، لیکن آج پھر یہ بات آئی ہے کہ جنازے میں اگر شامل ہوا ایک آدمی اور اس نے وضو کیا، تو یہاں تو مجھے نہیں معلوم ہے کرناٹک میں کہ یہ بات مشہور ہے، لیکن یو پی میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ اس وضو سے دوسری کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. یہ بات ایک دم غلط ہے. ایک مرتبہ وضو کر لیا آدمی، جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک نماز پڑھے یا 20 نماز پڑھے، وضو چاہے قرآن پڑھنے کے لیے کیا یا جنازے کے لیے کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عوام کی جو ہے الگ کی باتیں ہیں. پوچھا گیا ہے سنت کے مطابق مہر کتنی ہونی چاہیے، اور اگر سونے میں کوئی دینا چاہے تو سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی میں کوئی دینا چاہے تو کتنا ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ لیں کہ مہر کے بارے میں اسلام نے مردوں کو آزاد رکھا ہے. مہر کتنی ہونی چاہیے یہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق طے کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مہر کی کوئی مقدار ہی نہیں ہے. امام سوال پوچھا گیا ہے کہ سنت کے مطابق مہر کتنی ہونی چاہیے، سونے میں ہو تو کتنی ہو اور چاندی میں ہو تو کتنی ہو. دیکھیں یہ بات سمجھ لیں مہر کے بارے میں، مہر کے لیے شریعت نے کوئی رقم متعین نہیں کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر اتنی ہو. کم سے کم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نہ مہر کی کوئی مقدار ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ کی. لہذا سنت کے مطابق کے مطلب مہر ہونی چاہیے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ جو ہے وہ 10 درہم منیمم مہر ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے کوئی یہ سنت کی طرف سے متعین نہیں ہے. رہا سونا اور چاندی، جو بھی مہر متعین کی جائے
اس کی اگر رقم پیسے کی شکل میں ہے تو جتنا سونا بنتا ہے آپ سونا دے دیں، جتنی چاندی بنتی چاندی دے دیں، اس کے لیے کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جب بیوی سے پہلی ملاقات ہو تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا وأعوذ ربک من شرہا و شر ما جعلتہا علیہ۔ یہ دعا پڑھنا بعض لوگوں نے لکھا ہے سنت ہے، بہرحال اکثر کے نزدیک یہ دعا ثابت ہے، لہذا کسی نے نہیں پڑھا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ پوچھا گیا مولانا ہم کو عقیقہ کرنا ہے اور ایک بکرا ہم ایک شہر میں کرنا چاہتے ہیں، دوسرا بکرا دوسرے شہر میں کرنا چاہتے ہیں، اور عقیقے کا بچہ تیسری جگہ ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں بچہ ہے وہاں پہ کوئی اس بکرے کا ذبح ہونا ضروری نہیں ہے۔ دونوں بکرے الگ الگ شہر میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ ایک ہی دن میں ہونا چاہیے، مطلب جیسے کہ آج بکرا یہاں ہو رہا ہے تو آج ہی لکھنؤ میں بھی ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ کوشش اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ٹائم پر بکرے ذبح ہو جائیں، لیکن کم سے کم اگر ٹائم نہ ہو تو دن ایک ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے دو الگ الگ جگہ پر بکرے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولاد اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو والدین کو ثواب ملتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی برا کام کرتی ہے تو عذاب دیا جاتا ہے یا نہیں، اس میں صحیح کیا ہے؟ دیکھیں، والدین کے انتقال کرنے کے بعد اگر والدین نے بچے کو نیک تربیت دی ہے اور بچہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ اگر اس نیکی کے سبب ہیں، مثال کے طور پر اس نے ایک عالم بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، اور بچہ جب وہ حفظ کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملتا ہے، تو ایک رائے یہ ہے لوگوں کی کہ اس کے والدین کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی ہمارے پاس مستند دلیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اگر والدین کے لیے بچہ نیکی کرتے وقت دعائیں کرتا رہے، وہ کیا کہتے ہیں، نیت کرتا رہے کہ اللہ میں جب بھی کوئی نفل کام کروں تو اس کا 10% میرے امی ابو کو جائے، تو ہمیشہ جاتا رہے گا۔ نیت ہونی چاہیے۔ کیا گناہ بھی جائے گا؟ جو گناہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک ابو نے بیٹی کو ٹی وی خرید کر دیا ہے، اور بیٹی جو ہے شادی کے بعد اپنے سسرال میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ ڈانس دیکھتی ہے۔ ابو نے چونکہ خریدا ہے، لہذا جب تک وہ ٹی وی پہ غلط پروگرام جب دیکھے گی، ابو کو بھی جو ہے ثواب کی جگہ پر عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ غلط کام ہوا ہے۔ تو غلط کام میں اگر سبب بنا تو گناہ جانا ہے۔ دلیل دے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کے بیٹے نے قتل کیا، اب اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس قتل کا ایک عذاب ہمیشہ آدم کے اس بچے کو جاتا ہے جس نے سب سے پہلا مرڈر کیا ہے۔ تو پتہ چلا وہ سبب بنا، اس سبب کی وجہ سے اس کو آج تک کیا ہو رہا ہے، عذاب جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ ایسا کوئی کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے، مثال کے طور پر ابا نے سودی کاروبار کیا اور ابا کے مرنے کے بعد بیٹے نے اسی سودی کاروبار کو سنبھال لیا، تو ابا کو تو گناہ ملتا رہا زندگی بھر، انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 1، ابا نے کسی کا کھیت لیا، گروی کھیت لیا، اور اس کو کھیتی کرتا رہا، فائدہ اٹھاتا رہا، گویا سود کھاتا رہا، یا کسی مکان کو لیا گیا لیز پر، اور مکان لیز پر رہنے والا کرایہ نہیں دیتا رہا، سود کھاتا رہا، تو پھر ایسی شکل میں جب ابا مر جائیں گے، جو اس میں رہ رہے ہیں، جو بیٹے صاحب ہیں، ان کو بھی ویسے ہی گناہ ملتا رہے گا۔ تو جو بھی گناہ کے کام ہیں وہ اگر وراثتاً آئے ہیں تو ابا کو بھی گناہ ملے گا، اور جو آدمی غلط کام کر رہا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ایک صاحب کہنے لگے کہ جب سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو تو یاسین پڑھنے کے بعد رک جاؤ اور درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو، آگے قرآن پڑھو۔ تو کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ یہ ایک دم غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے کلکتہ سے ایک دوست انہوں نے یہ سوال کیا تھا، یہ ایک دم غلط ہے۔
पूछा गया मैयत को इत्र लगाना जायज है या नहीं। मैयत को इत्र लगाया जा सकता है। पूछा गया है कि पिछले मरतबा आपने बताया कि एक आदमी की कई जिंदगी और कई मौत होती है, वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन इसको समझ लें कि जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जितने लोग क़यामत तक पैदा होने वाले थे सबको पैदा कर दिया गया। पूरी हमारे पास कुरान भी इस पे दलील है, हदीस पे भी दलील है। उसके बाद सारे लोग गोया कि जो पैदा हुए थे उनको एक मौत दे दी गई, और मौत देने के बाद अब दोबारा हम यहाँ पैदा हुए दुनिया में। तो एक हमारी मौत पहली हुई, फिर इस दुनिया में हम पैदा हुए, और तो गोया जो पैदा हुए हम वो मौत के बाद, अब इस वक्त जो हम चल रहे हैं, एक हमारी जिंदगी हुई और जिंदगी के बाद मौत हुई। अब मौत के बाद हमको फिर जिंदगी मिली, अब इस जिंदगी के बाद फिर मौत होगी, अब जब मौत होगी उसके बाद फिर जिंदगी होगी। यानी अब इसके बाद जब हम मरेंगे तो ये मौत होगी, और उसके बाद हमको फिर दोबारा क्या मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। तो ये इसकी तरकीब है। पूछा गया है कि शादी से पहले जो रस्म राइज है उसमें नेग जिसे कहते हैं, अंगूठी या पैसा वगैरह भी देते हैं, इसका क्या हुक्म है? एक जुमले में अगर मैं बताऊं तो ये कि जितनी रस्में आप करते हैं भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सारी रस्में आप खुद कह रहे रस्म है। आपने सवाल में भी नहीं कहा है कि ये सुन्नत तरीका है। जब आपने लफ्ज़ रस्म इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब वो रस्म है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब रस्मों की तीन कैफियत होती है। एक रस्म जायज़ हो जाती है, एक रस्म गुनाह हो जाता है, एक रस्म जो है वो अकीदे की अगर हुई तो शिर्क वगैरह तक भी हो सकता है, बड़ा गुनाह हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि रस्में गुनाह कब होती हैं और रस्में जायज़ कब होती हैं बुनियादी तौर पर। तो एक बड़ा टॉपिक है, गालिबन मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पर किताब लिखी है। किताब नहीं मतलब एक मजमून है उनका, इस्लाह रसूम किताब है, उसमें भी गालिबन उन्होंने ये बात छोड़ी है कि रस्में जो है वो गुनाह कब बनती हैं। तो अगर रस्म गुनाह नहीं बनेगी, अगर रस्म जायज़ भी होगी, तो तीसरी शक्ल भी हो सकती है कि रस्म गुनाह ना बने लेकिन फजूल खर्ची का गुनाह मिले, ये भी हो सकता है। ये शादी से पहले जितना जो कुछ भी आप करते हैं, मंगनी के नाम पर, लड़की देखने दिखलाने के नाम पर, ये सारी की सारी बेहुदा बातें हैं। लेकिन एक शादी तय हुई है, अगर लड़की वाले ने लड़के को या लड़के वाले ने लड़की को कोई गिफ्ट दिया है तो हदिये के तौर पर देना और लेना जायज़ है। ये एक अलग बात है कि रस्मों को ख़त्म करना चाहिए और कम से कम जो है वो रस्में हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए। पूछा गया है कि लड़की दिखाने का सुन्नत तरीका क्या है। शादी में जो लड़कियां शादी तय होती है, एक बात याद रखें, इसमें मौलवी से लेकर के नीचे तक सारे लोग, मेरा अंदाजा है कि 99% लोगों को चाहे मसला नहीं मालूम है और चाहे मसले को गलत समझा जा रहा है। लड़की दिखाने की कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। देखना अलग है, दिखाना अलग है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, किसी शादी में उसको देख लीजिए, कॉलेज जाते हुए देख लीजिए, कॉलेज में पढ़ते हुए देख लीजिए, लेकिन ये प्लान बनाना कि लड़के वाले आ जाएंगे, मुझे अपनी लड़की दिखानी है, ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। देखना और दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जो शरीयत ने इजाजत दी थी, सहाबी से ने जब कहा कि मेरी शादी तय, और उन्होंने फरमाया कि क्या तुमने लड़की देखी है? तुम अंसार की लड़कियों को देख लिया करो, उनकी आंखों में जो है वो कोई ऐब होता है, जिस खानदान की बात नहीं होगी। उन्होंने ये बात नहीं कही कि उनसे कहो कि मुझे लड़की दिखाओ। आपने इनसे कहा कि आप लड़की देख लें। लड़की देखने का ही तरीका है, अगर गांव है, पता चला खेती करती है लड़की, जाती है दरवाजे पे जो है वो चारा वगैरह देती जानवरों का, आप देख लें। लेकिन ये जो आपने रस्म बनाई है कि 10 लोग आएंगे, बच्ची को बैठाला जाएगा, देखा जाएगा और आखिर में रिफ्यूज कर दिया जाएगा, ये जो किया जा रहा है, ये एक औरत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। औरत न हो गई गोया कि आलू प्याज हो गई कि खरीदने हम गए हैं, अच्छी लगेगी तो खरीदेंगे और खराब लगेगी तो रिजेक्ट करके आएंगे। मैं ऐसी कम से कम 20 बच्चियों को जानता हूं कि जिनको ऐसे दिखला करके अब नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी।
इतनी हर्ट हो गई हैं, इतना उनको तकलीफ पहुंच चुकी है कि वो अब अपने आप को कहती है कि मैं ना कार्टून बनने के लिए तैयार हूं और ना मैं अपने आप को किसी को दिखाने के लिए तैयार हूं। हाँ, अगर कोई मुझसे शादी करना चाहे बगैर देखे हुए तो मैं तैयार हूं, कोई फोटो दे मांगेगा मैं दे दूंगा, लेकिन मैं ये बैठ करके जो ड्रामा, अपने वालिदैन को भी खूब उन्होंने बुरा भला कहा कि ये जो तुमने ड्रामे किए हैं मेरे साथ जिंदगी में 20 साल से कर रही हैं, मैं अब ये ड्रामा बंद करना चाहती हूँ, मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं कुंवारी मर जाऊंगी। लेकिन ये तरीका ये क्यों हुआ? क्योंकि सोसाइटी में तुमने गलत तरीका अख्तियार किया। ये कतई इस्लामी तरीका नहीं है, इसको नोट कर लें कि जो लोग बड़े शौक से मौलाना जैसे लोग जाते हैं कि भाई लड़की तो देखना सुन्नत है, लड़की देखना सुन्नत है, जिसको कैरो दिखाने के लिए वो सुन्नत नहीं है। आप किसी तरीके से तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है लड़की को बगैर इत्तला किए हुए किसी शादी का प्लान बना ले, लड़की भी वहां आ रही हो, आपकी औरतें गई हो, वहां देख ले, सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन प्लान से जो किया जा रहा है एकदम गलत है, और किसी भी आदमी के दिल को तकलीफ पहुंचाना गुनाह कबीरा है। जितनी मर्तबा जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है सब गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान, एक मोमिना औरत की क्या किया है, बेइज्जती की है और उसके दिल को दुखाया है। पूछा गया है कि बर्थडे में विश करना कैसा है। देखें, एक बात बता दें, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं इसमें हम टाइट जवाब देंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं भाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं कि अगर इस किस्म के बहुत ज्यादा टाइट मसले हम बयान करते हैं तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस्लाम से करीब आने के बजाय इस्लाम से क्या होती है, दूर होती है। मुझे एक मुस्तर फतवा नहीं दीजिएगा आप लोग, मेरा अपना ये है कि जिस चीज में इस्लाम ने इस किस्म से डायरेक्ट मना न किया हो, महज हमारा इज्तिहाद मना कर रहा है, तो उसमें जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जितना भी उसके अंदर लचक होने के चांसेस हैं, वो लचक बरकरार रखनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल इस्लाम से नफरत न करने पाए। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आपका गैर मुस्लिम दोस्त है और उन लोगों के यहाँ एक बड़ी चीज है, जब बर्थडे है, अगर आप विश नहीं करेंगे तो समझते हैं कि ये हमारा हाफिज है, अगर ऐसी शक्ल है तो आप विश कर लें, उसके बच्चे को हैप्पी बर्थडे कह दें, मोबाइल के जरिए जैसे भी करना हो कर दें। अगर किसी ने आपको कर दिया हैप्पी बर्थडे, अब बैंक वगैरह में सब जगह डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है और उनका हैप्पी बर्थडे आता ही रहता है। अगर किसी ने आपको कर दिया और वैसे ही रस्मी तौर पर किया है तो जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, इस बात की उम्मीद लगाए नहीं बैठे हैं कि मेरी बर्थडे है लोग मुझे विश करें, ये भी नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके अवॉइड करें, और अगर अवॉइड करने नहीं बनता है, नहीं बच सकते हैं, तो फिर कह देने से कोई ऐसा कुफरिया जुमला नहीं है कि बंदा काफिर हो जाएगा। ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अख्तियार करनी चाहिए, टाइट होने के बजाय जितना नरमी हो सकती नरमी अख्तियार करें। पूछा गया अगर कोई शख्स ज़कात लेते हुए शर्म महसूस करता है और मुझे मालूम है कि ये ज़कात नहीं, अगर हम बोल देंगे ये ज़कात है तो नहीं लेगा, तो क्या ऐसे शख्स को ये कह करके दिया जा सकता है कि ये हदिया है हमारी तरफ से? एकदम किया जा सकता है। क्यों? किसी भी आदमी के दिल को तकलीफ पहुंचे तुम्हारे ज़कात से, वो गैरतमंद इंसान है, वो नहीं लेना, वो नहीं आपके ऊपर, तो ऐसी शक्ल में आपको न बताना जरूरी है कि ज़कात की रकम है। ज़कात की रकम सिर्फ उस वक्त बताना जरूरी है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था, किसी तंजीम को ज़कात दें। इंफरादी तौर पर अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं तो आपकी नीयत होना काफी है, आपको बताना कोई जरूरी नहीं है। पूछा गया है मौलाना साहब, मैं ऑफिस से जब निकलता हूं तो तकरीबन 5 बजे होते हैं और उसके बाद मैं जब घर पहुंचता हूं तो 6, साढ़े 6 बजे, दुबई की बात है, 6, साढ़े 6 बज जाते हैं। तो इस दरमियान में मगरिब की अजान होती है, जमात हो जाती है। अब 30-35 मिनट रह जाते हैं ईशा में, लिहाजा हम लोग क्या करते हैं कि अब ईशा तक मगरिब को टाल देते हैं और फिर ईशा और मगरिब दोनों मिला के पढ़ लेते हैं। एकदम गलत कर रहे हैं आप, पता ही नहीं होना चाहिए। आप 5 बजे निकलते हैं, आपने असर की नमाज ऑफिस से पढ़ लिया, इसका मतलब मगरिब की नमाज एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए क्या बजे सूरज डूबता है। मिसाल तौर पर 5 बजे निकलते हैं और 5:30 या 6 बजे सूरज डूब रहा है और 6 बजे के बाद से आपके पास 15 मिनट बाद आप पहुंच गए हैं। अब आप इस वजह से कि मैं एक ही वजू करूं और दोनों नमाज निपटा दूं, ये बोझ उतारने की बात है, एकदम गलत है।
मगरिब का वक्त अभी मौजूद है जब आप अपने घर पहुंचे, लिहाजा मगरिब की नमाज पहली फुर्सत में अदा की जाए, फिर इशा के वक्त में इशा की नमाज अदा की जाए। दोनों नमाजों को एक साथ इस तरीके से मिलाना एकदम सही नहीं है। पूछा गया मौलाना साहब, बाज़ दुआएं कुरान में मनक़ूल हैं और उन दुआओं से पहले लिखा रहता है कुल, तो कुल के माने होता है कहिए, तो क्या मैं जब दुआएं उनको मांगूं तो मैं भी कुल कहूं? नहीं, जब ऐसी दुआएं हैं तो वो कुल कहा गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादातर कहा गया होगा, लिहाजा वो कुल कहने के बजाय आगे से जो अल्फाज हैं, कुल का मक़ौला क्या है? असल वो होता है, दुआ तो क्या है, जहाँ से मक़ौला है, यानी जहाँ से बात कही गई है, लिहाजा कुल को छोड़ करके दुआ मांगे। पूछा गया हमारे ऑफिस में यहूदी भी अब आने लगे हैं, तो क्या मैं उनसे हाथ मिला सकता हूँ या नहीं मिला सकता? देखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अपने दीन को प्रचार करने की, अपने दीन की प्रीचिंग की पॉलिसी रखता है, तबलीग दीन। अगर आप इस तरीके से लोगों से नफरत और इस तरीके से आप अपने आप को सोसाइटी में अलग थलग करेंगे तो कौन आपके दीन के करीब होगा? और यहूदी तो पहले किताब है, अगर काफिर पे हाथ मिलाना जायज़ है तो यहूदी से भी हाथ मिलाना जायज़ है। पूछा गया मौलाना साहब, आजकल एक व्हाट्सएप पे बात आ रही है कि अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करें कि आज का खलीफा कौन है तो एक कादियानी का नाम आता है, तो फिर वो बताते हैं कि आप ये करें और जा करके उसको रिजेक्ट करें। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक हमको मालूम नहीं था कि हमको तलाश करना है कि आज का खलीफा कौन है। ये तुमने प्रचार करके उसका प्रचार किया, वो आदमी जिसके लोग जानते ही नहीं थे उसका प्रचार आपने किया। ये सब मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की तरकीबें हैं। अब आपको फॉरवर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मुसलमान हैं, आपके अंदर शऊर है, आप अगर नबी को मानते हैं, चाहते दुनिया भर की बातें लिखकर प्रचार करें, वो मतलब इसको फॉरवर्ड करें। ये हम मुसलमान इतनी भोली भाली कौम है कि इसके बेचारी को अपने बारे में भी ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये सब का रिमोट कहीं और होता है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो रिमोट चलाते हैं। लिहाजा इस किस्म की बात अगर आपके पास कभी आए, आप अवॉइड करें, नेग्लेक्ट करें। आप खुद प्रचारक न बन जाएं वो कादियानी के। लिहाजा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इग्नोर करें, दरगुदर करें, ख़त्म करें। हुआ क्या है कि आपको मालूम है कि द इस्लाम जो वेबसाइट है, जब ये नेट शुरू हुआ, जब सर्विस शुरू हुई, वो 1% भी नहीं है दुनिया में कादियानी। सबसे पहले उन्होंने द इस्लाम नाम की वेबसाइट को अपने नाम पे क्या कर लिया, रजिस्टर करा दिया। अब आप द इस्लाम नाम पर कोई वेबसाइट अगर रजिस्टर करना चाहेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जब द इस्लाम, अब गैर मुस्लिम वो चाहता है कि इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करे, तो टाइप क्या करता है, द इस्लाम। जब द इस्लाम टाइप करता है तो उधर से कादियानी की वेबसाइट खुलती है, क्योंकि आपको आप तो दूसरी चीज में मस्त है ना, आपको तो लड़ना है, हुजूर है, नूर है कि नहीं है, आपके सामने ये मसला फंसा हुआ है, रफुल दैन करना है नहीं करना है, आप सामने इसके आपके सामने ये मसला फंसा हुआ है, देवबंदी को काफिर नहीं कहेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे, आपके सामने ये मसला फंसा हुआ है, जमात इस्लामी काफिर है, तबलीगी जमात काफिर है, ये सारे टॉपिक आपने छेड़ रखे हैं। मस्जिदों में आपको किसी को आने नहीं देना है। तो जिस कौम में भी ये सब मसाइल हैं, उस कौम को द इस्लाम और वेबसाइट ये सब तो एक समझिए बहुत बड़ी चीज है। तो तुम इसमें खोए रहे और उन्होंने अपना काम कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के आपने बताए क्या थे, वो सब तो हमको अता पता नहीं है। वो शायर ने कहा ना कि आप नात में उनकी जालियों की तारीफ में मगन रहे। जाली की तारीफ हो रही है, हुजूर के कब्र की तारीफ हो रही है। हुजूर के साथ क्या हो रहा है ये इनको पता ही नहीं, फरिश्तिन के फरिश्तों को भी खबर नहीं है। ये जाली हरी कर ले गए और जाली की शान में अच्छे अच्छे अचार कर लिए, और दूसरे लोग क्या है अपना काम करते रहे। ये आज से नहीं हो रहा है, कई सौ साल से हो रहा है। मुसलमानों को इस बात की परवाह नहीं होती है। आज भी मुसलमान जिन बातों पे लड़ रहे हैं, जो बात इशू है, कल भी आपको बताया था कि एक आदमी रफुल यदैन पर लड़ता है, उसे ये नहीं मालूम होता है कि नमाज के फराइज क्या हैं। जो जानना चाहिए था वो नहीं जानता है, जिसके जानने की जरूरत नहीं उस पर लड़ता है। बहरहाल अल्लाह हमारी हिफाजत। हमारे पास कई ऐसे ग्रुप हैं, हमको खैर जैसे ही दाखिल ऐड करते हैं हम निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी बेतुकी बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ एक बात लिख करके
ग्रुप छोड़ देता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है लड़ने का, मुसलमानों लड़ लो, इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। हमने कहा कि जिस कौम के एक एक चीज मसाइल में, आपकी तालीमी पॉलिसी प्रॉब्लम में, आपके मदारिस प्रॉब्लम में, आपकी मसाजिद प्रॉब्लम में, ऐसी कौम जो है वो उन चीजों पे लड़ रही है जिसका ना इस दुनिया में कोई फायदा है ना उस दुनिया में कोई फायदा है। लिहाजा ये जो हुआ, ये कादियानी वाला मामला, वो खलीफा, आपने इस बात को नेट पर, वैसे आपके बड़े माहिरीन, आपके नेट देखते क्या हैं आपके बच्चे सब गंदी चीजें देखने में माहिर हैं। अभी भी मालूम है सबसे ज्यादा गलत वेबसाइट कहाँ खुलती है, भारत में खुलती है, आप जाकर नेट पे चेक कर लीजिए। और अगर मेरा अपना अंदाजा है कि अगर ये निकाला जाए कि इसमें खोलने वाले कितने मुसलमान हैं, वैसे आप 18% हैं, उसमें आप 42% हैं, उसमें आपकी परसेंटेज ज्यादा है। मैंने एक जेल में जाकर के तकरीर थी मेरी, तो मैंने तकरीर किया तो जेलर एक लेडी थी, वो कहने लगी क्या मैं आपकी तकरीर में बैठ सकती हूँ? हमने कहा बैठ जाइए। सब कैदी थे, मैंने तकरीर किया, बहुत खुश हुई। तो उसने कहा क्या ये तकरीरें आप बाहर भी करते हैं? हमने कहा हाँ। क्या लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप 18% भारत में, यहाँ 43 से 44% आप हैं जेल में। वो कह रहा है कि तुम्हारा परसेंट भारत के आबादी में 18% है, मिसाल के तौर पर, जैसा आप लोग बोलते रहते हैं, यहाँ पे तुम 44% हो। ये देख लो तुम्हारी ये हालत है। अगर तुम ऐसी तकरीरें करते हो तो यहाँ कैसे आ गए ये लोग? और सही बात यह है कि हमारी तकरीरें बेतुकी हो रही हैं, हमारे डिबेट, हमारे मुनाजरे, हमारी बहसें सब बेकार चीजों पर। दुनिया इस बात पर कोशिश कर रही है कि अगर किसी प्लैनेट पे या किसी जगह पर कोई आबादी मिल जाएगी तो उनसे कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, उनसे बातचीत कैसे की जाएगी। ये बेचारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक है कि नहीं है, इस पर बहस चल रही है। पाखाना पाक है कि नहीं, पाखाना करते थे तो पाखाना जमीन के अंदर चला जाता था कि ऊपर रहता था, ये बहस में बेचारे लगे हुए हैं। ये जब क्या कहते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद का गालिबन वाक़या है कि इन्होंने जो है वो एक उस पर हमला किया, तो बॉर्डर पे जो है कोई भी हिफाजत करने के लिए मौजूद नहीं था। तो पूछा फौज कहाँ गई? उन्होंने कहा गांव में, शहर में एक मुनाजरा हो रहा है और उसमें यह बहस लगी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम का पेशाब पाक था कि नापाक, उस पर बहस में लोग लगे हुए हैं। लिहाजा वहां पे अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए फौज भेजी गई है और बॉर्डर की चिंता नहीं है, बॉर्डर पे दूसरा आदमी दाखिल हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। तो मुसलमान मुजाहिदीन बहुत हंसे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा हंसो नहीं, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी यही करोगे कि तुम्हारे मसाइल कुछ होंगे, वैसे तुम्हारी दूसरी होंगे। ऐसी चीजों में सबसे ज्यादा हम उलझे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हयात हैं कि नहीं, इस मसले को लेकर के हैं। हयात है तो खाते क्या हैं? ऐसी ऐसी बातें हैं जिसका कोई सिरे से हमारी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है। हुजूर साहब हर जगह मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं? अच्छा नहीं मौजूद हैं कि तुम्हारा क्या नुकसान है, और मौजूद होंगे तो तुम्हारा कौन सा फायदा है? सब बेतुकी बातें। मेरी समझ में नहीं आता, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ आप लोगों से, कि कहां पर ब्लंडर मिस्टेक हो रही है हमारी जिंदगी में कि सब कुछ हमारे पास मौजूद, अल्लाह का अक़ीदा मौजूद, रसूल का तरीका मौजूद, तकरीर करने वाले मौजूद, जलसे मौजूद, जुलूस मौजूद, 52 जुमा मौजूद, हजारों लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं। तरबियत जो होनी चाहिए थी कि मुसलमान इस दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारे, उसे अता पता ही नहीं। कहाँ गड़बड़ी हो रही है, हालांकि मैं वो भी मैं बता सकता हूँ, अलग टॉपिक है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अभी पिछले जुमा तकरीर की तो एक साहब ने बाकायदा कमेंट किया, उन्होंने कहा मौलाना आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन मदरसे वाले आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, मदरसे वाले आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे इन बातों को। बहरहाल हमारा भी काम, हमने भी तय कर रखा है कि हम बोलने से बात नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं सुधर रहे हैं तो हम बोलना छोड़ दें, जब आप गलत बात पर नहीं सुधर रहे हैं तो सही बात को छोड़ने की क्या बात है? बहरहाल अल्लाह हिफाजत करता है। पूछा गया मौलाना साहब हमारे यहाँ इमारात में जो है वो जुमा की अजान बहुत पहले हो जाती है और सुन्नत हम कब पढ़ें? देखें, ये बात याद रखें, जो वक्त ज़वाल का होता है
وہ زوال کے بعد اذان ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو آپ سنت پڑھ سکتے ہیں, جمعہ کی سنت ادا ہو جائے گی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذان ہو. بہرحال اس کو آپ, اگر یہ کہ نہیں ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھیں گے, وہ اس کا وقت نہیں ہے. اس کا وقت پہلے جو ہے پہلے ہے, جو بعد ہے وہ بعد ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ عورتیں جو ہے جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. سر اگر ڈھکا رہتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرمایا ہے, زیادہ لکھا ہوا ہے کہ جوڑا اگر سر کے بیچ میں ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے, بعض لوگوں نے لکھا ہے. اور اگر جوڑا یہاں پر ہے گدی پر جیسے کہ گھما کر کے یہاں باندھ دیتی ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے مسئلہ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب, جماعت سے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اچھا, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس مسئلے میں اختلاف چل رہا ہے. اگر میں بول دوں گا پڑھو تو پڑھنے لگو گے, میں بول دوں گا نہیں پڑھو تو نہیں پڑھنے لگو گے. کرنا وہی ہے جو کر رہے ہو, کرنا وہی ہے جو کر رہے ہو, لیکن اپنی انرجی بھی برباد کر رہے ہو, ہماری بھی برباد کر رہے ہو. صحابہ کے زمانے سے اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے رہو, جو نہیں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھو, دونوں پر حدیث موجود ہے. لہذا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا, یہ سوال نہیں پوچھتے. جو اصل پوچھنا چاہیے تھا وہ سوال نہیں پوچھتے ہیں. اچھا, پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ ایک صاحب کا کاروبار ہے, ان کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں, اور ان کے کاروبار کو اب ان کے بیٹوں نے سنبھال رکھا ہے, خوب آگے ترقی دی ہے, اس میں پوتے بھی شامل ہو گئے ہیں, وہ بھی اسی بیاپار میں لگے ہوئے ہیں. 2 بھائی جو بڑے ہیں وہ اس سے الگ اپنا دوسرا کام کرتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے باپ کی جو بزنس ہے اس کو پوتوں نے اور بیٹوں نے خوب بڑھایا ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب انتقال ہونے کے بعد سارے لڑکے اور پوتے کہتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے بڑھا ہے, تو یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اور جو بھائی اس میں 2 بھائی الگ ہو چکے ہیں, کیا وہ بھی برابر کے حقدار ہیں؟ جو لوگ اس میں محنت کر کے بڑھائیں وہ بھی اتنا ہی پائیں گے, جو نہیں محنت کیا وہ بھی اتنا پائیں گے, وہ پوتے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اتنا ہی پائیں گے. کیا ہوگا؟ اس میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے. نمبر 1, جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں باپ نے کسی کو الگ نہیں کیا, لڑکے لگے رہے اور محنت ہوتی رہی, تو یہ باپ کی پراپرٹی مانی جائے گی. اگر آپ نے محنت کی ہے تو آپ جتنے دن محنت کرتے ہیں آپ کا خرچہ پانی کہاں سے چلتا رہا؟ اسی بزنس سے چلتا رہا. تو کوئی آپ نے اپنی تنخواہ لے لی ہے. اگر آپ نے محنت کی تو آپ نے اپنی تنخواہ لے لی ہے. پوتے لگے رہے وہ بھی اپنا خرچہ پانی کہاں سے نکالتے رہے. اگر ابا دیے تو ابا یہاں سے نکال کے دیے, وہاں سے ملا, یا ڈائریکٹ تم نے نکالا تو بھی تم نے یہیں سے نکالا. وہ 2 بھائی جو الگ ہو گئے ہیں ان کو برابر کا حصہ اس لیے ملے گا کیونکہ وہ اگر نکل گئے تو تمہارے میں سے کچھ کھاتے نہیں رہے, تمہارے گھر میں نہیں رہے, ساتھ میں نہیں رہے, تم نے اسی سے گھر چلایا. لے دے کر کے خلاصے کلام یہ ہے کہ پوری پراپرٹی کو باپ کی پراپرٹی مانی جائے اور شرعی لحاظ سے 6 بیٹے اور 6 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے. طریقہ یہی ہوگا, بیٹے ہیں ان کو ڈبل مان لیا جائے تو 6 بیٹے ہو گئے 12 حصہ اور 6 بیٹیاں 18 ہو گئے. پوری پراپرٹی کو 18 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے, جتنے کروڑ کی بنتی ہو 18 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے, اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک لڑکی کا اتنا حصہ آئے گا, ڈبل اس لڑکوں کا حصہ آئے گا. لیکن یہ کہ جو لڑکا نکل چکا ہے اس کا حصہ کم ہوگا, وہ جو پوتا شامل ہو گیا اس کو بھی حصہ ملے گا, نہ پوتے کو حصہ ملے گا اور نہ نکلنے والے لڑکے کو کم ملے گا, بلکہ برابر ملے گا. پوچھا گیا ہے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والے کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ قیاسی ہے, یہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے تلاوت کی, تلاوت کرنے کے بعد اس نے یہ کہا اللہ مجھے جو کچھ ثواب ملا ہے میں اس ثواب کو اپنی امی کو ٹرانسفر کرتا ہوں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے جب آپ نے ٹرانسفر کر دیا تو آپ کا بیلنس 0 ہو گیا. جیسے آپ کے پاس 2000 روپے اکاؤنٹ میں, آپ نے 2000 کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں 2000 دینے کے بعد ہمارے پاس بھی 2000 بچا ہوا ہے. یہ بعض لوگوں کی دوسری رائے ہے. تو دوسری جو رائے ہے اس کی دلیل وہ لوگ یہ دلیل تو قرآن حدیث میں ڈائریکٹ ہے ہی نہیں کہیں بھی. دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی طرف سے حج کرتا ہے
تو जिसके लिए हज करता है उसको भी सवाब मिलता है, जो बीच में हज करवाता है उसको भी सवाब मिलता है, और जो फिजिकली हज करता है उसके लिए उसको भी सवाब मिलता है। हज एक ही हुआ है, हज एक ही हुआ है, तीनों आदमियों को सवाब मिला। इस पर कयास करते हुए लोगों ने कहा कि पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा। मैं तीसरी राय देना चाहता हूँ, कभी भी साल सवाब करें, अपने अकाउंट बचाए रखें, परसेंटेज में बांटें। जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह, इसमें जो कुछ भी सवाब मिला है 50% हमारे पास कम से कम रहे, और 50 में जिनको बांटना है, ताकि आप खुदा न खास्ता वहाँ पता चले कि आप समझ के गए मेरा अकाउंट फुल है और पता चला आप जीरो में खड़े वहाँ। लिहाजा सेफ कॉर्नर को अख्तियार करने की कोशिश करें। ये भी मेरा अपना ذاتی है, आप नहीं करना चाहते ना अख्तियार करें। पूछा गया है बहुत मजबूरी की हालत में कारोबार के लिए बैंक से लोन लेना जायज़ है कि नहीं। बहुत मजबूरी, कोई तरफ से नहीं मिल रहा है, अगर नहीं लेंगे तो फाका हो जाएगा, ऐसी शक्ल में फिर लेना जायज़ है। गोया कि आप सूद भरेंगे, लेकिन ऐसी हालत में कभी भी किसी से सूद लेना जायज़ नहीं है। पूछा गया जो कमाई होगी क्या वो हलाल होगी? जब वो जायज़ होगी तो ये हलाल भी होगी। पूछा गया इमाम आज़म नमाजी के आगे से कितनी दूर से गुजरना जायज़ है? ये मसला बहुत इख्तलाफी है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का अलबंदा है और वो बहुत अच्छी राय है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि जहाँ तक इंसान की निगाह जाती है उसके आगे से इंसान गुजर सकता है। अब इंसान की निगाह अगर देखेगा तो कई मील जाएगी, वो मतलब नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं आपकी निगाह होनी चाहिए सजदे की जगह पर। सजदे की जगह के आगे से कितनी दूर तक आप देख सकते हैं? ज़्यादा 3 सफ हो सकता है। अगर हम चौथी सफ से गुजरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई गुजरा है। तो उनकी राय सबसे अच्छी राय है। इमाम आज़म, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद फरमाई है कि अगर आपको मालूम हो जाए तो आप जिंदगी भर खड़े रहेंगे, आप कभी हटेंगे नहीं जब तक कि नमाज ना हो जाए। इस बुनियाद पर उनका फतवा ये है कि अगर छोटी मस्जिद है तो कहीं से नहीं गुजरा जा सकता। अब छोटी और बड़ी मस्जिद की डेफिनेशन क्या है? आपके पूरे हुबली में शायद एक आध मस्जिद बड़ी है, वरना कोई बड़ी नहीं, सब छोटी है। उसके लिए इतने पिलर्स, ये शर्तें मुझे इस वक्त याद नहीं है कि इतने पिलर्स होना चाहिए, इतने बाई इतनी होनी चाहिए। बहरहाल ऐसे मौके पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अमल कर लें वो सबसे अच्छा है। पूछा गया मौलाना साहब मैं वजू कर रहा था, मेरा वजू करते करते टूट गया, मैं अभी चेहरा धुल रहा था और मैंने वजू को शुरू से रिपीट नहीं किया बल्कि वहीं से मैं आगे बढ़ता चला गया। ऐसा हो जाता है, वजू करते करते आदमी का वजू टूट जाता है। बहुत प्रैक्टिकली सवाल है। देखें, इसमें अगर आप चेहरा धुल रहे हैं और वजू टूटा है तो इसका मतलब आपने हाथ धुल लिया था, कुल्ली कर ली थी, नाक पे पानी लग गया, आपने रिपीट नहीं किया, वहीं से आगे बढ़ गए तो वजू हो जाएगा। वजू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चेहरा धुलना फर्ज था, उसी पर आप थे, आपका फर्ज चेहरा अदा हो गया। उसके बाद आपने हाथ धुला, मसा किया पैर का, तो 4 चीजें फर्ज थी वो अदा हो गई, वजू अदा हो जाएगा। शुरू से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ रिपीट नहीं करो, मैं नहीं कह रहा हूँ। सवाल पूछा गया है कि क्या मैं रिपीट करूं? तो रिपीट करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई आदमी अभी तो आप वजू की हालत में ही हैं, लिहाजा शुरू से कर लें, अच्छी बात है, नूरुन अला नूर वाली बात है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।